Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and welcome to the final lecture of Software Engineering 1 CSE 291. And in today's lecture we will be going through a quick overview of the course, and we will see at all the topics that we have covered, and we will very briefly discuss each topic and try to figure out that what we have learned throughout this course of Software Engineering 1. So first of all, before we get to those individual topics, let's quickly go through that what we have covered. So we started off in the first lecture. We introduced that what do we mean by software engineering, and we defined people thought when we engineer products, so the failure rate in engineered product is relatively less than software, because the software, they used to overrun time, they used to overrun cost. So we wanted to come up with an approach where we can create these products successfully. We can create these products on time. We can create this product in the budget that we have allocated for them. So for that, we thought we need an approach which would be an engineered approach, which will be a systematic approach where we define some steps, and when we follow those steps, so we would have a product which would be developed on time and which we will be developed under the budget that we have actually allocated for that particular project. Following that, our introductory lecture, we discussed software process models. First of all, we defined what a software process model is, and then we discussed two kind of models, two categories of models. The first one was traditional process models, and then we looked at agile process models. And on the basis of these process models, we knew one thing, that whatever the model is, even if it's a traditional process model, if it's a agile process model, then the construction of any software, it can be decomposed into distinct phases. Now those phases, they can be sequential, they can be parallel. And what are those phases? We figured out that you need to gather requirements, which is called the analysis phase, and then you need to design the product, and then you need to implement the product, and then you need to test the product, and when you have tested the product, you need to actually deploy the product. And throughout all these phases, we knew that we need to maintain quality, and that actually told us what are the things that we need to cover. So in terms of analysis phase, we started with we defined that what is a proper way, or what is a proper approach of gathering requirements from the customer. So we discussed a technique which we called requirement engineering. And so we said, first of all, we defined what do we mean by requirement engineering, and the definition is actually similar, or it is derived from the definition of software engineering, that requirement engineering gives us an engineered approach to gather requirements, where we said कि जी हमने requirement gathering को कुछ steps में divide कर दिया, where we start from inception, we do elicitation, we do elaboration, we do specification, we do negotiation, and we basically control the changes in the requirements. Or within the requirement engineering, we said that we create different kind of models, specifically at the elaboration phase. And those were four kinds of models. We said that we create scenario-based models, we do class-based modeling, we do flow-oriented modeling, and then we do behavioral modeling. Following that, at this stage, at this analysis stage, we realized that within those different categories of models, scenario-based models, behavioral models, and the class models, we create different kind of diagrams. And there are different computer-aided software engineering tools which are used, or which provide notation, or which provide different guidelines for creating those kind of diagrams. And one of the most standard one is the UML, Unified Modeling Language. Is a language that is an industrial standard, or that is a de facto standard for most of these diagrams. So we discussed from UML's point of view that what are the elements involved in all of these diagrams. So in regards to that, we covered the use cases and the elements involved in a use case. We covered activity diagrams, system sequence diagrams, collaboration diagrams, data flow diagrams, class diagrams, and then we covered CRC modeling. So following that, when we went through the UML notations of each of these diagrams, we basically thought that we have actually gone through the analysis, or we have actually have some kind of an understanding that how we can gather requirements, or how we can conduct analysis when we have to make a certain product, which is basically then we move to the next phase, which was design. Okay, we are doing analysis of the product, but we need to design the product. So design is very important, that if your design is not good, that product won't be good. And your good design would mean that a product would be better. So we started our design series of lecture with our introduction to design. We discussed various design concepts, and then we on the basis of that, we saw that design is actually a continuation from analysis phase. Okay, and the different diagrams that we produce at the analysis phase, they are actually helpful, and they are used in creating different design artifacts. We divided the design
software design into 4 basically distinct steps. We said, okay, we create architecture design, we do object and class design, we do user interface design, and there is another category which we do data structure design, which we actually not covered in this course because we thought that would be covered in your data structures course, because you will be taking a whole complete course of data structures. So we left it for that, and then we following the design phase, we is the implementation stage. Okay, where you actually write the code, and on the basis of your design, you basically start implementation. And again, implementation, we skipped implementation because that will be covered in your other courses, your introduction to programming, your object-oriented programming, your data structure, your algorithms, and that will be covered in basically those courses. So then we moved on to another very important topic of software engineering, which was software testing. That you have created the product, now how you will test the product, and then we discussed why testing is important, why do we test the product, why we need to do that. We identify the goals of testing. In testing specifically, we went through different testing levels, and then we defined what are the different testing methods and techniques. In terms of that, we discussed black box testing, white box testing, we defined how we can write test cases, and we briefly went through the debugging process. Okay, and then one of our very interesting topics was software quality assurance. And again, SQA is a very huge field on its own. I mean, all of these fields, requirement engineering, design, and even individual topics within these fields, they are very big topics on their own. But we went through a very quick review of software. What do we mean by software quality assurance? And we identified, we defined different quality concepts. And we said that every company, even if every organization or every software producing company, whether they agree to it or not, they do try to ensure that they are producing products which are of acceptable quality to their customer. And then we discussed various techniques where we can actually come up with numbers for different quality attributes, which fall under the category of statistical SQA. And then in our last lecture, which was basically our previous lecture of this course, or the second last lecture of this course, we discussed the component and deployment diagram. Because if you remember, the final stage of the of a software process model is actually deploy and support to the customer. We didn't discuss support, but we discussed deployment diagrams. And where we said कि deployment diagram क्या होती है, कि deployment diagram actually shows the environmental view of the product, or it gives you the runtime environment, or it gives you the hardware implementation point of view से आपको बताती है कि आपकी when the product will be deployed at the customer side, what will be the kind of nodes that will be used there, और उन nodes के दरमियान communication कैसे होगी, और जितने भी हमारे components रन टाइम के ऊपर नोड्स के ऊपर यूज होंगे, तो वी ड्रॉ दैट दोस कंपोनेंट्स एज वेल व्हेन वी क्रिएट द डिप्लॉयमेंट डायग्राम्स, एंड दोस कंपोनेंट दे बिलोंग टू दोस नोड्स. ओके जी, so let's go through these different topics individually. So in terms of the traditional software process models, we covered 4 models. Okay. We started our discussion with a very basic, with the first model that was proposed, which was waterfall model. ठीक है, और वाटरफॉल मॉडल के हमने अंदर कहा कि जो सारे आपके स्टेप्स होते हैं, it assumes that everything is in a sequence, that you do requirement gathering, or you do analysis, then you do design, then you do implementation, then you do testing, and finally you have this deployment. ठीक है, so then we said that there are different problems with it. ठीक है, कि it is not natural that you gather all the requirements and then start the design. ठीक है, so basically we realized कि things they need to be in a certain sequence. ठीक है, so it cannot be कि आपने एक ही दफ़ा सारी requirement इकट्ठी करनी और फिर आप डिज़ाइन शुरू करें. ठीक है, so things go in parallel, and then we identified कि इसके अंदर बहुत से drawbacks हैं. कि वो drawbacks किस तरह से हैं, कि normally customer would come back to you again and again, and they would say, "Gee, I want to change some requirements. ठीक, I want a certain change in the product." Now the waterfall, once you have completed the requirement analysis stage, so this doesn't allow you to go back. ठीक है, this was one of the problems with waterfall model. ठीक है, and then we discussed few other models. We discussed a new variation of waterfall model, which actually allows you to allows feedback in the waterfall model. Okay, and then we discussed another kind of model जिसको हमने कहा जी incremental model. Incremental model के अंदर हमने कहा कि you develop, it's basically similar to waterfall model, लेकिन you divide the development into various increments, और हर increment के लिए आपकी क्या होती है, you have analysis, you have design, you have implementation, you have testing, and then you have deployment to the customer. ठीक है, और हम कहते हैं कि जी एक इंक्रीमेंट के अंदर हम इसमें वापस नहीं आ सकते, वी कैन नॉट डू दैट. ठीक है, अगर इसमें हमने कोई काम सही नहीं किया या कस्टमर वांट अ चेंज इन द प्रोडक्ट, तो वो चीज़ नई इंक्रीमेंट में होगी. सो दिस वाज लेट्स से इंक्रीमेंट 1 एंड दिस वाज इंक्रीमेंट 2, and we can divide the product into different increments, or development into different increments.
और हर इंक्रीमेंट के बाद वी प्रोड्यूस समथिंग दैट इज एक्चुअली फंक्शनल, ठीक है, वी गिव यू न्यू फंक्शनैलिटी टू द कस्टमर. दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ द इंक्रीमेंटल मॉडल. And another type of model that we covered, that was spiral model. स्पाइरल मॉडल हमने कहा कि जी स्पाइरल मॉडल इस तरह होता है कि स्पाइरल मॉडल के अंदर हम इसको डिफरेंट फेजेस के अंदर डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, और एक्चुअली इट शुड बी हेयर, डिफरेंट फेजेस के अंदर डिवाइड कर देते हैं. और स्पाइरल मॉडल के अंदर जो डिस्टिंक्ट काम हम करते हैं वो हम क्या करते हैं कि हर स्पाइरल के अंदर वी डू रिस्क एनालिसिस, ठीक है. रिस्क एनालिसिस इज सेंट्रल टू स्पाइरल मॉडल, कि वी ट्राई टू डू अ रिस्क एनालिसिस कि जी हमने ये डिसीजन लिया था, इस डिसीजन की वजह से हमारे पूरे प्रोडक्ट के ऊपर क्या रिस्क पड़ेगा. सो वी डू रिस्क एनालिसिस इन एवरी साइकिल ऑफ द स्पाइरल मॉडल. ओके जी, एंड देन वी डिस्कस अनदर प्रोसेस मॉडल इन टर्म्स ऑफ ट्रेडिशनल प्रोसेस मॉडल, जिसको हमने कहा था दैट इज प्रोटोटाइप मॉडल, ठीक है जी. और ये प्रोटोटाइप मॉडल क्या था, पहली बात तो ये कि व्हाट इज अ प्रोटोटाइप. तो हमने प्रोटोटाइप को डिफाइन किया था कि एट टाइम्स पीपल और द रिक्वायरमेंट इंजीनियर्स व्हेन दे गो फॉर एनालिसिस, व्हेन दे गो फॉर रिक्वायरमेंट गैदरिंग, तो जो कस्टमर होता है कई दफ़ा कस्टमर एक्सप्रेस ही नहीं कर पाता कि व्हाट डज ही वांट, ठीक है, बिकॉज मे बी ही इज़ नॉट अ कंप्यूटर लिटरेट, ठीक है, लेकिन ही वांट्स टू ऑटोमेट हिज बिजनेस प्रोसेसेस, ठीक है. सो दे बेसिकली से एट टाइम्स कि जी हमें आप कोई प्रोडक्ट ला कर दिखाएं, ठीक है. सो दैट इज व्हाट अ प्रोटोटाइप इज, दैट यू मेक समथिंग which essentially does not have all the functionalities but it gives a rough interface or it and use it as a tool. आप कस्टमर को जाके दिखाते हैं, कस्टमर कहते हैं जी ये है, so tell us what do you want from these, what are the features that you're looking for in, you know, so we have this, what else do you want, or you know what are the things that you want from this. So the customer would say okay ji I want this and this and this and this. So उस prototype basis के ऊपर it helps you in gathering requirements, and because that prototype is only meant to gather requirements, so at times the people who develop that prototype, they do not put lot of emphasis on a good design in terms of creating that prototype. So normally we call that prototype a throwaway prototype. So we create a prototype, we get the requirements, and then we start development. So those were the traditional process models that we covered. Following that, we covered few other kind of process models जिनका हमने नाम दिया agile process models, ठीक है, जिनका नाम है agile. और we okay, and then first of all in terms of agile process model we define what do we mean by agility. हमने कहा जी agility का मतलब ये है कि the products who are very reactive to changes, ठीक है, यानी कि जैसे ही चेंज आती है वो उसको अकोमोडेट कर लेते हैं, ठीक है. सो हमने कहा कि ये जितने भी एजाइल प्रोसेस मॉडल हैं दे आर वेरी अकोमोडेटिंग, ठीक है, and they actually are one of the most used models these days, क्योंकि a lot of people have created, especially in terms of subcontinent, especially in terms of Pakistan, where there are various small spin of companies, and what these companies do, they get projects from Elance, so they have a very close connection with the customer. So the customer is usually sitting on the Skype and they tell them different requirements, and then they produce the product, they go back and tell the customer we have made this, and the customer will tell them okay जी अब इसके अंदर ये feature डालें. So customer actually gives them small increments, और हर increment के बाद you get feedback from the customer. So that is what agile is all about. That so the focus on agile is actually on implementation, ठीक है. The focus is on implementation, and agile is basically incremental model, लेकिन the size of the increment is very small, ठीक है. And our focus is on implementation, and we do not create a lot of formal documents, so we do minimal design, ठीक है. और in terms of agile we covered two process models. हमने एक cover किया extreme programming, and the other one that we covered that was scrum, ठीक है. और हमने देखा कि इन दोनों के agile process models के कुछ principles होते हैं. One of the most important principle is कि it needs huge customer involvement, ठीक है. अगर आपके पास customer आपका available नहीं है तो आपका agile model fail हो जाएगा, ठीक है. इसी तरह ये जो एजाइल प्रोसेस मॉडल्स होते हैं, इट इंश्योर्स कि पीपल नॉट प्रोसेस, ठीक है, कि आपने लोगों को ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है. यू आर नॉट फॉलोइंग सर्टेन प्रोसेसेस, जिस तरह आपका रिक्वायरमेंट एसआरएस बनाने को कोई बड़ा सा प्रोसेस फॉलो नहीं कर रहे, ठीक है, और आप लोगों को काम एलोकेट करने के लिए भी कोई प्रोसेस नहीं फॉलो कर रहे, ठीक है. यू आर डूइंग इट, लेकिन योर एम्फेसिस इज मोर ऑन पीपल, यूर ट्रस्टिंग, यूर पुटिंग मोर ट्रस्ट ऑन पीपल, ठीक है. और हमने इन दोनों के अंदर देखा था कि लॉट ऑफ फोकस इज ऑन द इंडिविजुअल्स, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल यू हैव अ टीम ऑफ 5 people and you trust all of them. अगर एक बंदा कहता है कि I can do this particular task in this much time, तो हम कहते हैं कि जी ओके, और ये काम हम उसे असाइन कर देते हैं, ठीक. अच्छा, इन दोनों के अंदर कॉमन चीजें क्या, एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग के अंदर हमने देखा था कि द साइज ऑफ इंक्रीमेंट इज मैक्सिमम साइज ऑफ इंक्रीमेंट इज 15 days. स्क्रम के अंदर हमने देखा था वो 30 days है. स्क्रम के अंदर एक इंक्रीमेंट को हम कहते हैं स्प्रिंट, ठीक है. इसके अंदर एक इंक्रीमेंट को हम कहते हैं एक यूजर स्टोरी को हम कहते हैं कि हम एक इंक्रीमेंट में कर रहे हैं, ठीक है जी. और फिर हमने देखा कि दोनों के अंदर एक और डिजाइन प्रिंसिपल होता है विच सेज कि कीप इट सिंपल, यानी कि डिजाइन जो है वो मिनिमल डिजाइन हमने करना है, क्योंकि हम डिजाइन
मिनिमल क्यों करते हैं? क्योंकि these models they believe कि चेंज तो आनी ही आनी है. So if you put lot of effort on design और बाद में चेंज आए और आपका डिजाइन सारा फेल हो जाए तो what's the point? ठीक है. लेकिन एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि even though the size of increments is very small, हर इंक्रीमेंट के बाद these models require that you give something functional to the customer. After every increment you should provide something to the customer that is actually functional. Okay जी, so you have user stories, you have sprints, और हमने देखा कि इनके अंदर इंक्रीमेंट्स का साइज क्या होता है. Okay जी. So following that we started our discussion on the specifically on the analysis phase. ठीक है जी, analysis phase के अंदर हमने कहा कि जी basically what you have to do is you have to go and gather requirements from the customer. और हमने कहा कि जी there is a proper way of gathering requirements. ठीक है, there is a systematic way of gathering requirements which is defined as requirement engineering. और रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग को हमने कहा जी 7 डिफरेंट डिस्टिंक्ट टास्क में आप स्टेप्स में आप डिवाइड कर सकते हैं. हमने कहा जी पहला इसका एक टास्क हो सकता है जिसे हम कहते हैं इंसेप्शन. ठीक है, इंसेप्शन के बाद हमने कहा एक और फेज होती है जिसे हम कहते हैं एलिसिटेशन. एलिसिटेशन के बाद एक और होती है जिसे हम कहते हैं एलैबोरेशन. और एलैबोरेशन के बाद आपकी होती है जिसे हम कहते हैं स्पेसिफिकेशन. स्पेसिफिकेशन के बाद आपकी होती है शायद नेगोशिएशन. एंड देन यू हैव अ स्टेज व्हिच वी कॉल वैलिडेशन. And then finally you do requirements management as well. Okay जी, हमने कहा कि जी अगर आप requirement engineering को इन distinct steps को follow करें तो you would be in a better position or you would get the requirements which would be not very ambiguous. ठीक है, और inception के अंदर we said कि what do we mean by inception? So inception consists of set of questions. ठीक है, तो पहला काम हम inception के अंदर क्या करते हैं कि this is first of all set of questions and we try to identify कि who is the customer. And we identify stakeholders, ठीक है, and end users. And we try to identify goal of the product कि ये काम करने क्यों जा रहे हैं. ठीक है. Then in terms of elicitation, elicitation के point of view से we said कि elicitation means कि to get something out from somebody, कि आपने end user से जाके चीज़ें उगलवानी है, आपने उससे पूछना है कि यार ये product तुम लोग कैसे use करते हो. And we said at the time कि elicitation is one of the most difficult tasks. To get something out of people that is not very easy. At times people are not good at expressing themselves. At times it's not, you might not be asking the right questions. So you need to create an environment where you break this ice and you get people talking to each other. And ideally the best way of eliciting requirement is that you gather a sample of different categories of end users, you put them together in a room and you start eliciting requirements. And in regards to that we basically cover 2 techniques. एक को हमने कहा था जी collaborative requirement gathering और दूसरी टेक्निक को हमने कहा था quality function deployment. So those are the 2 techniques that we discussed in terms of elicitation. Following elicitation हमने कहा जी जो तीसरा फेज रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग का होता है that is called elaboration. So what do we do in elaboration? Whatever we have elicited in the elicitation stage, हमें जो चीज़ें पता लगी we try to elaborate on them. We try to put them we try to elaborate them. We try to formally define them. ठीक है. And in terms of elaboration, we said कि elaboration phase is one of the most detailed phases of requirement engineering. और elaboration के अंदर we create different kind of models. और उन models की हमने 4 categories बना दी. हमने कहा कि जी एक तरह के model होते हैं उनको हम कहते हैं scenario based models. Then we have behavioral models. Then we have class based models. और हमने कहा कि हमारे को होते हैं flow oriented models. Okay जी. और उन models को हमने कहा कि जी हम different तरह की diagrams बनाते हैं which will get to that. अच्छा, फॉलोइंग दैट हमने कहा कि जी एक स्पेसिफिकेशन स्टेज होती है और इस स्पेसिफिकेशन स्टेज के ऊपर एक्चुअली आप रिक्वायरमेंट्स को लिखना शुरू कर देते हैं. यू स्टार्ट स्पेसिफाइंग द रिक्वायरमेंट्स और दिस इज अ स्टेज जहाँ पे आपकी पहली दफ़ा हम कहते हैं ना जो सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट, दिस इज अ स्टेज एक्चुअली वेयर दिस डॉक्यूमेंट इज प्रोड्यूस्ड. So specification is the stage where we create this document that we often you guys must have heard of, which is called software requirement specification document. So that is a stage जहाँ पे हम रिक्वायरमेंट को लिखना शुरू कर देते हैं और यहाँ पे हम रिक्वायरमेंट को लिख लेते हैं. Following that there is a stage जिसे हम कहते हैं negotiation. Negotiation is a stage where आपने रिक्वायरमेंट लिख ली होती है, आपको कस्टमर ने बताया होता है कि जी ये प्रोडक्ट ये काम आपने हमें इतने अरसे में करके देना है और आपको कुछ रिक्वायरमेंट्स के अंदर कन्फ्लिक्ट नजर आता है. तो दैट इज अ स्टेज इन रीजंस की वजह से यू रियलाइज किया यू नीड टू गो बैक एंड टॉक टू द कस्टमर एंड व्हेन यू सो द पर्पस हियर इज दैट यू वांट टू नेगोशिएट विद द कस्टमर. आपको लगता है कि यार ये काम बहुत ज़्यादा है,
ठीक है, या तो आप कहते हैं इसका टाइम कम है या पैसे कम, सो यू बेसिकली यहाँ आपको जो कन्फ्लिक्टिंग रिक्वायरमेंट्स होती हैं तो यू गो एंड टॉक टू योर कस्टमर एंड टेल हिम कि यार वी शुड डू इट दिस वे और दैट वे, ठीक है. सो वी बेसिकली ट्राई टू गो एंड ट्राई टू क्रिएट अ विन विन सिचुएशन वेयर कस्टमर इज हैप्पी एंड यू आर आल्सो हैप्पी. फॉलोइंग दैट इज द वैलिडेशन स्टेज. वैलिडेशन ये कहती है कि आप कस्टमर से रिक्वायरमेंट को वैलिडेट करवा लेते हैं. आप कहते हैं जी ये निगोशिएशन भी हो गई, अब ये मेरी फाइनल रिक्वायरमेंट्स हैं, प्लीज गो थ्रू देम एंड टेल मी कि दिस इज व्हाट यू वांट, ठीक. एंड दिस स्टेज इज वेयर नॉर्मली द रिक्वायरमेंट साइन ऑफ आल्सो टेक प्लेस, जहां पे कस्टमर अप्रूव कर देता है कि जी ये चीज मुझे चाहिए. एंड दैट बिकम्स द फाइन द डॉक्यूमेंट अगेंस्ट व्हिच व्हेन यू विल एक्चुअली give the product to the customer, he would actually evaluate the product. And then there is another thing which is part of requirement engineering, जिसे हम कहते हैं requirement management या requirement change control. The purpose here is that you want to keep track of all the requirements. For example, आपने 100 requirements customer से gather की हैं या आपने 100 requirements लिखी हैं specification stage के ऊपर. So you want to manage all the requirements. You want to keep track of कि customer ने अगर कभी भी किसी requirement में कोई change की request किया तो when was that, ठीक है, and whether that change took place, what was the impact of that change on other requirements, what is the impact of that change on the overall project completion time या cost के ऊपर क्या फर्क है. So this is what we are interested in when we say कि requirement change control या requirement management. So those were the 7 distinct phases that we discussed in terms of requirement engineering. So और फिर हमने कहा था कि जी elaboration के अंदर हमने we spend most of our time और in requirement engineering lectures in the elaboration phase, क्योंकि this is one of the most detailed phases जहाँ पे हम ये ज़्यादा models create करते हैं. So in terms of scenario based modeling we discussed different kind of modeling techniques. जैसा scenario based modeling के अंदर we discussed use case models, we discussed activity diagrams, we discussed swim lane diagrams. So those were the different diagrams that we discussed at this stage. And another thing that is related to use case models and use case diagram is the use case text. Okay. So हमने देखा कि जी use case, पहले बात हमने देखा कि use case होता क्या है, ठीक है. So we said कि a use case, when we create a use case, so we try to identify first of all the end users and how those end users or external entities will interact with the system. So that is what a use case is. Use case क्या बताता है कि कौन से end user आपकी product को किस तरह से use करेंगे. Similarly इसी चीज़ को आप डायग्राम में भी शो कर सकते हैं, और हमने कहा जी डायग्राम जो होती है वो कुछ इस तरह की होती है कि हमने ये एक्टर बनाते हैं और ये एक्टर डिफरेंट यूज केसेस के साथ कनेक्टेड होते हैं, या ये कहते हैं कि जी ये एक्शन ये परफॉर्म कर रहे हैं. ओके, एंड These actions we can write text about it. हम इसको टेक्स्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि एक एक्टर आया, उसने फॉर एग्जांपल लॉगिन किया, लॉगिन के बाद उसने दूसरा काम ये किया, तीसरा काम ये किया. तो जब हम यूज केस का टेक्स्ट लिखते हैं तो हम यूज केस को एक यूनिक आइडेंटिफायर भी लिखते हैं, यूज केस के सारे स्टेप्स लिखते हैं, यूज केस के अंदर जो एक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं वो लिखते हैं. सो वी राइट दीज थिंग्स. एक और चीज़ जो हमने सिनेरियो बेस्ड मॉडलिंग के अंदर कवर की थी, दैट वाज एक्टिविटी डायग्राम्स. Then when we created the activity diagrams, so first of all we answered the question कि why do we need to create these activity diagrams. तो we said कि if there are decision points in a use case, या अगर आप देखें कि आपने यूज केस डायग्राम बनाई है और इस यूज केस डायग्राम के अंदर अगर एक्टर एक काम करेगा तो he would get multiple options. He can either go take one path or take another path. यानी कि if there is an alternate action that an actor can take in a use case diagram, so you make an activity diagram for that. For example, you created 10 use case diagrams और उन 10 में से शायद 5 के अंदर you identified places where actor can take multiple actors can basically make alternate decisions. So in that case you make 5 activity diagrams for to represent those kind of flows. Then we saw कि जी swim lane diagram क्या होती है. तो swim lane diagram को फिर हमने डिस्कस किया कि अगर हमारी जो activity diagram है उसके अंदर हम हर actor wise डिफाइन कर दें कि कौन सा एक्टर इस एक्टिविटी डायग्राम में से कौन सी एक्टिविटीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, या कौन सी एंटिटी कौन सी एक्टिविटीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और उसको डिफरेंट लेन्स में डिवाइड कर दें तो वो गेट अ स्विम लेन डायग्राम. और एक और चीज़ बिफोर वी एक्चुअली डिस्कस दीज थिंग्स फर्दर, एक चीज़ जो हमने इसमें आई पुट लॉट ऑफ एम्फेसिस ऑन कि इन टर्म्स ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग when we create these models, so we try to partition our system. This is something very interesting and very important. You need to keep that in mind. Okay, when you create use cases, so you partition your system on the basis of users. Then another kind of partitioning is where you try to identify entities in your system. इसके अंदर we create streamline diagram is an example for that. Sequence diagram is an example for that. Class diagram is an example for that. Similarly, अगर आप अपने data की basis के ऊपर, which are your inputs and outputs की basis के ऊपर अपने system को partition करते हैं, then we create those data flow diagrams. ओके जी, तो अगली चीज़ जो हमने की थी दैट वाज फ्लो ओरिएंटेड मॉडलिंग. इन टर्म्स ऑफ फ्लो ओरिएंटेड मॉडलिंग वी डिस्कस्ड डाटा फ्लो डायग्राम्स, वी डिस्कस्ड
control flow diagrams, and we discussed processing narratives. अच्छा, in terms of DFDs, पहली बात तो ये हमने बताया कि जी DFDs होती क्या है, ठीक है, और इन टर्म्स ऑफ DFDs हमने कहा जी DFDs के मल्टीपल लेवल्स हो सकते हैं. वी स्टार्ट विद अ लेवल 0 DFD, और लेवल 0 DFD के अंदर क्या होता है, वी हैव अ ह्यूज बिग बबल, और इस बबल से हम आइडेंटिफाई करते हैं कि यार इस बबल के साथ कौन सी एंटिटीज कौन सी इनपुट्स भेजेंगी, और फिर हम कहते हैं यार अच्छा हमारा सिस्टम इन इनपुट्स को लेके कौन सी आउटपुट प्रोड्यूस करेगा और वो किन एंटिटीज को देगा. सो दैट इज व्हाट वी डू एट लेवल 0. Then at level 1 we decompose this main bubble into sub processes. हम कहते हैं कि यार इसके हम ना 3 सब या 4 सब प्रोसेस बना देते हैं, और अगेन ये हम कहते हैं कि यार ये इस तरह से आपस में जुड़ी होंगी. So this is an example of level 1. ठीक है जी. और लेवल 0 को हम कैसे करते हैं, और लेवल 1 के अंदर हम इन प्रोसेसेस को नंबर दे देते हैं ताकि हमें पता लगे कि हमने अपने मेन बबल को कितने 4 सब प्रोसेसेस के अंदर ब्रेक कर दिया. सिमिलरली वी कैन डिकम्पोज इट फर्दर, वी कैन क्रिएट लेवल 2 DFDs, लेवल 3 DFDs. लेकिन यहाँ पे एक चीज़ जो आपने रियलाइज़ करनी है कि ये जितने भी ये लिंक्स हैं, ऑल ऑफ देम दे रिप्रेजेंट द फ्लो ऑफ डाटा. जैसा इस केस के अंदर दे आर रिप्रेजेंटिंग फ्लो ऑफ डाटा बिटवीन एन एंटिटी एंड अ प्रोसेस, इसके अंदर बिटवीन अ प्रोसेस एंड एन एंटिटी, इसके अंदर बिटवीन द 2 प्रोसेसेस. तो दीज डाटा फ्लोज दे शुड बी लेबल्ड, ठीक है, एंड दे शुड बी लेबल्ड इन सच अ वे दैट दे रिप्रेजेंट डाटा. ठीक है, इसके ऊपर वर्ब नहीं होने चाहिए, दे शुड रिप्रेजेंट डाटा. ओके जी. देन जो हमने कहा कि हमने दूसरी चीज़ हमने पढ़ी थी, दैट वाज कंट्रोल फ्लो डायग्राम्स. Control flow diagrams, first of all, what are they? They represent different states of the system. It is similar to a state chart or a state diagram. लेकिन state diagram तो we usually make it for a class. लेकिन the control flow diagram we create it for the overall product. हम पूरे product की different states को identify कर लेते हैं और हम कहते हैं जी एक डाटा की input के ऊपर आप state कैसे change करेगा. So again हमारा जो what we are modeling here is we are modeling data flow. ठीक है, लेकिन we on the basis of different kind of flows we represent different states of the product. And then finally we covered processing narratives. Processing narratives क्या होते हैं कि whatever functionality you have actually shown कि आपका जी ये process ये वाले डाटा को इस तरह से लेकर इस तरह ट्रांसफॉर्म कर देता है, तो we write that in the form of the text. तो हम उसे कहते हैं जी ये processing narrative है, जहाँ पे हम बताते हैं कि एक एक process का वो हम narrate कर देते हैं कि कौन सा process क्या काम करेगा. ठीक है. So those were the 3 things that we discussed in terms of flow oriented modeling. And then we came to the class-based modeling. In terms of class-based modeling, हमने discuss किया कि how do we create class diagrams, what do we mean by object diagrams, okay, and then what is CRC modeling. Okay जी. तो हमने जब क्लास डायग्राम डिस्कस की तो हमने पहला क्वेश्चन तो ये आंसर किया कि जी हम क्लासेस आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, फिर हमने कहा कि जी क्लासेस के एट्रीब्यूट्स और ऑपरेशन कैसे आइडेंटिफाई करते हैं. अनदर टॉपिक वाज ऑब्जेक्ट डायग्राम. इन टर्म्स ऑफ क्लास बेस्ड मॉडलिंग ऑब्जेक्ट डायग्राम के अंदर एग्जांपल क्या है. फॉर एग्जांपल वी हैव दीज 2 क्लासेस जहाँ पे हमने कहा कि देयर इज अ ऑर्डर क्लास एंड देयर इज अ कस्टमर क्लास. one customer can give multiple orders. तो अगर हम इसके ऑब्जेक्ट डायग्राम बनाएं वो क्या होगी कि आप कहेंगे जी फॉर एग्जांपल दिस इज पर्सन ए और दिस इज पर्सन बी एंड दिस इज हमने कहा जी पर्सन सी. ठीक है, और हमने यहाँ पे कह दिया कि जी पर्सन ए ने अपना एक ऑर्डर दिया, ऑर्डर 1, और इसने अपना एक ऑर्डर दिया ऑर्डर 2. फिर हमने कहा कि जी क्योंकि एक कस्टमर मल्टीपल ऑर्डर भी दे सकते हैं तो हो सकता है इसने ऑर्डर 3 भी दिया हो पर्सन ए ने. सो दिस इज एन ऑब्जेक्ट डायग्राम कि आप उसी की इंस्टेंसेस को शो करते हैं कि इसके मल्टीपल इंस्टेंस बन के आपकी इसकी डायग्राम कैसी बनेगी. एंड देन द फाइनल थिंग इन टर्म्स ऑफ क्लास बेस्ड मॉडलिंग व्हिच वाज डिस्कस्ड वाज सीआरसी मॉडलिंग. कि सीआरसी मॉडलिंग क्या होती है. पहली बात तो ये व्हाट डज सीआरसी स्टैंड फॉर. सीआरसी स्टैंड फॉर क्लास रिस्पांसिबिलिटी कोलैबोरेटर. उसके अंदर हम क्लास को रिस्पॉन्सिबिलिटीज और उसकी कोलैबोरेशंस के अंदर डिवाइड कर देते हैं. So what are the responsibilities of a class? Responsibilities को हमने define किया है the things that a class knows and the things that a class does. We call them responsibilities. So the things that a class knows, they are the attributes of a class, and the things that the class does, they are called operations of the classes. And we said कि collaboration की जरूरत क्यों पड़ती है कि when we are क्लास जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी परफॉर्म कर रही होती है, एट टाइम्स टू परफॉर्म अ रिस्पॉन्सिबिलिटी अ क्लास डज नॉट हैव ऑल द डाटा.
एंड इन दैट केस द क्लास नीड्स टू कम्युनिकेट विद अनदर क्लास, तो उस केस के अंदर आपकी कोलैबोरेशन आ जाती है. ओके, एंड an important question here is कि when do we create these CRC models? So we said they are usually created somewhere between the use case diagrams and class diagrams. So if we have the use cases, on the basis of that you start making these CRC models. So these CRC models, they are very helpful tool in actually understanding that how will you implement these different classes, what will be the association, what will be the type of the association between different classes. Okay, and then in terms of the behavioral modeling, which was the final kind of modeling or final kind of diagrams that we make in the elaboration phase of requirement engineering. In terms of that, we discussed the sequence diagrams, and then we discussed the collaboration diagrams. Okay, दोनों डायग्राम का मकसद क्या होता है? Both these diagrams, they show कि how different objects, how different entities in the system will interact with each other. ठीक है, लेकिन the difference is जो आपकी sequence diagram होती है, ये आपको timed interaction बताती है कि किस time पे एक object दूसरे object के साथ interaction करेगा. तो it gives you a sequence. तो sequence आपको collaboration भी देता है, लेकिन वो time sequence नहीं देता. It does not tell you कि it doesn't actually show कि कौन सी कि किस time के ऊपर ये वाला message, for example, there was a message between two objects, so it does not give you the timing, whereas the sequence diagram, it gives you the timing. Collaboration भी, it gives you the ordering of interaction. ठीक है, ordering collaboration भी दे देती है, लेकिन it does not give you the timing of interaction between different objects. और in terms of sequence diagram हमने कहा था कि जी जितने भी आपकी classes होती हैं उनको हम columns के अंदर identify करते हैं. For each sequence, each class you have its lifeline. और example इसकी क्या है कि for example हमने कहा कि जी एक student है और there is always an initiator object. ठीक है, तो student क्या करता है? Student logs in. ठीक है, तो जब वो log in करेगा, enters username and password. ठीक है, और यहाँ पे हमने कहा कि जी ये इसको प्रोसेस कर रहा है सिस्टम, तो और इसने बता दिया कि जी लॉगिन सक्सेसफुल. जब लॉगिन सक्सेसफुल हुआ तो इसने फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपका था कोर्स, उसने फिर यहाँ से इसने रिक्वेस्ट भेज दी रजिस्टर कोर्स. ओके जी, सो दिस इज एग्जांपल ऑफ अ सीक्वेंस डायग्राम. कोलैबोरेशन डायग्राम क्या होती है? कोलैबोरेशन डायग्राम इज सिमिलर कि ये जो हमारी एंटिटीज, हमने जो क्लासेस लिखी होती हैं, इसके अंदर भी हम बॉक्सेस के अंदर वही लिख देते हैं, लेकिन इसके अंदर सिर्फ हम यूं और इन्हीं चीज़ों को, जो मैसेजेस पहले जा रहे थे वही मैसेजेस होते हैं, लेकिन हम हर मैसेज के साथ एक नंबर लगा देते हैं और वो इससे कि ये ऑब्जेक्ट्स की इंटरेक्शन ये होगी. ठीक है, सो मकसद दोनों का थोड़ा सा डिफरेंस है कि when we are interested in collaboration diagram, so we only want to know what will be the collaboration between different classes, whereas when we say sequence, so we want to know what will be the timing of different interactions between different classes. Okay ji, so that was behavioral modeling. Then we wanted to discuss, then we basically discussed in terms of the computer-aided software engineering. Okay, there are different tools or different modeling languages that are available which are helpful in creating these models, जो कि हमने ये भी पीछे elaboration phase के models देखे हैं. So in terms of that, unified modeling language is kind of a de facto standard for object-oriented analysis. So हमने UML के पॉइंट ऑफ व्यू से वी कवर्ड ऑल दीज डिफरेंट डायग्राम्स. ठीक है, उसके अंदर हमने पहली चीज़ जो हमने कवर की, हमने कहा जी यूज़ केसेस के अंदर यूज़ केस डायग्राम जब बनाते हैं तो उसके क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं. तो हमने कहा जी यूज़ केसेस के अंदर चार चीज़ें होती हैं. यूज़ केसेस के अंदर एक्टर्स होते हैं, आपके यूज़ केस होते हैं और लिंक्स होते हैं. फिर हमने कहा जी लिंक्स की डिफरेंट टाइप्स भी होती हैं. देयर आर थ्री अदर काइंड्स ऑफ लिंक्स. एक को हम कहते हैं कि जी इंक्लूड रिलेशनशिप्स होते हैं. फिर हमने कहा कि एक्सटेंड होते हैं और देयर इज़ अ जनरलाइजेशन रिलेशनशिप एज वेल. ठीक है, और इंक्लूड आर दोज काइंड ऑफ रिलेशंस जिनके बगैर यूज केस आपका कंप्लीट नहीं होता. ठीक है, जिससे हम कहते हैं कि जी दिस इज एन एग्जांपल जहाँ पे हम कहते हैं दिस एक्टर इज अ सेल्स असिस्टेंट. सेल्स असिस्टेंट हमारे दो काम करता है. ही टेक कस्टमर ऑर्डर एंड ही रिटर्न फॉल्टी गुड्स. हमने कहा कि जी ये जो टेक कस्टमर ऑर्डर है ना, दिस इंक्लूड्स कि ही नीड्स टू आइडेंटिफाई कस्टमर फर्स्ट ऑफ ऑल. Similarly here he needs to identify customer. So ये दोनों रिलेशनशिप जो हैं ये एग्जांपल है इंक्लूड की. Whereas हम कहते हैं कि this use case can extend the functionality where customer specifies product. तो जो include वाले connections होते हैं, without them the use case is not complete.
Whereas extend के अंदर अगर आप extension वाले उसको निकाल भी दें तो use case is normally considered as complete. Then you have another kind of जिसको हम कहते हैं generalization, ठीक है. तो generalization अगर हम इसी की करें तो वो generalization क्या होगी कि जो sales assistant है उसको हम एक use case बना देते हैं. हम कहते हैं कि जी sales assistant he deals with customer, और वो जब डील करता है तो वो दो काम करता है. एक वो क्या करता है, एक वो करता है टेक कस्टमर ऑर्डर, और दूसरा क्या करता है रिटर्न फॉल्ट रिक्वेस्ट. तो हमने यूज केस के इस तरह के सारे इन टर्म्स ऑफ यूएमएल हमने डिफाइन किया कि एक्टर होता है, यूज केसेस होते हैं, देन देयर दोज यूज केसेस दे आर लिंक्ड टू दोज एक्टर्स, और हमने देखा कि वो लिंक कितनी तरह के होते हैं इन टर्म्स ऑफ यूज केस डायग्राम्स. Then we move to the activity diagrams. फिर हमने activity diagrams को define किया कि activity diagram की हम there is always a start state in an activity diagram, ठीक है, और हम start state को कैसे represent करते हैं और हमारी जो final stage होती है उसको हम कैसे represent करते हैं, ठीक है. How do we represent different activities, और activities के दरमियान हम links को कैसे represent करते हैं. Then we discuss various other themes in terms of activity diagrams, कि activity diagrams के अंदर हमारे different concepts होते हैं जिसको हम एक को कहते हैं forking. Then we have a concept कि फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि एक्टिविटी डायग्राम के अंदर हम कंकरेंसी भी शो कर सकते हैं कि वी कैन रिप्रेजेंट कंकरेंसी थ्रू एक्टिविटी डायग्राम्स, और फॉर दैट वी यूज फोकिंग एंड वी एंड जॉइनिंग एज वेल, एंड वी डिस्कस वेरियस अदर वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट व्हेन वी डिस्कस्ड एक्टिविटी डायग्राम्स. But the important thing was that we figured out कि what are the different elements involved in terms of UML when we are creating an activity diagram. सिमिलरली जब हमने सिस्टम सीक्वेंस डायग्राम डिस्कस की तो हमने कहा जी सिस्टम सीक्वेंस डायग्राम के अंदर पहली बात तो ये एक इनिशिएटर ऑब्जेक्ट होता है जो कि उस सीक्वेंस को स्टार्ट करता है, और फिर उसके अंदर कुछ और ऑब्जेक्ट्स इन्वॉल्व होते हैं, और हर ऑब्जेक्ट की क्या होती है, देयर इज अ लाइफ लाइन ऑफ ईच ऑब्जेक्ट, ठीक है. और हमने कहा कि कुछ ऐसे भी ऑब्जेक्ट हो सकते हैं कि आप उनको स्पेशल क्रिएट की रिक्वेस्ट करें और वो तब ऑब्जेक्ट्स तब क्रिएट हो, और जब आपका उनका काम खत्म हो जाए, फॉर एग्जांपल इन्होंने इसको मैसेज वापस दे दिया तो आप यहाँ पे इसको डिस्ट्रॉय कर दें, तो इसकी लाइफ लाइन जो होगी ये पूरी नहीं होगी, इन वाले ऑब्जेक्ट्स के मुकाबले में कम होगी. तो और एक और चीज़ हमने कहा कि जब भी आप दो ऑब्जेक्ट्स या दो क्लासेस के दरमियान मैसेज शो करें सो इट शुड ऑलवेज बी लेबल्ड. पता लगना चाहिए कि व्हाट इज द मैसेज दैट इज बीइंग पास्ड बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, ठीक है. सो दोज आर द थिंग्स दैट वर इन्वॉल्वड इन अ सिस्टम सीक्वेंस डायग्राम. सिमिलरली हमने कहा जी कोलैबोरेशन डायग्राम जब हम बनाते हैं तो कोलैबोरेशन डायग्राम के अंदर भी जो बॉक्सेस होते हैं दे रिप्रेजेंटेड क्लासेस और इट्स इंस्टेंसेस, और अगेन इसके अंदर भी हम एरोस से शो करते हैं कि एरोस क्या शो करते हैं, एरोस शो करेंगे एसोसिएशंस. फिर हर एसोसिएशन के हम कहते हैं कि जितनी भी तरह की कोलैबोरेशन होगी इन दो क्लासेस के दरमियान हम उनको नंबर्ड लिख देते हैं कि 1 2 3 कितनी तरह की. सो फिर हमने एक और कोलैबोरेशन डायग्राम की कहा कि कोलैबोरेशन डायग्राम के अंदर ये रिफ्लेक्सिव एसोसिएशंस भी आप शो कर सकते हैं कि इफ अ क्लास नीड्स टू कोलैबोरेट विद इटसेल्फ तो वी कैन आल्सो शो दैट इन अ कोलैबोरेशन डायग्राम. फॉलोइंग दैट हमने कहा कि जी डाटा फ्लो डायग्राम्स क्या होती हैं. डाटा फ्लो डायग्राम के अंदर हमने कहा कि जी पहली बात तो ये कि डाटा फ्लो डायग्राम इट स्टार्ट्स विद अ लेवल 0 जिसको हम कॉन्टेक्स्ट डीएफटी भी कहते हैं. उसके बाद यू कैन क्रिएट लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4. सो देयर आर लेवल्स इन अ डीएफटी डायग्राम. फिर हमने कहा कि जी डीएफडी के अंदर 4 तरह की चीज़ें होती हैं. देयर आर एक्सटर्नल एंटिटीज जो कि आपके सिस्टम को या तो इनपुट देती हैं या उसकी आउटपुट लेती हैं. फिर हमने कहा कि जी ये आपके डाटा फ्लोज होते हैं, ठीक है, और दीज डाटा फ्लोज दे शुड बी लेबल्ड. Okay, and then we said there are different processes, और processes को हम शो कैसे करते हैं, processes को हम ऐसे शो करते हैं और इन processes का नाम होना चाहिए कि ये कौन से, और there would be some inputs into a process and there would be an output to a process. और एक और तरह की भी चीज़ होती है DFDs के अंदर जिसको हम कहते हैं डाटा स्टोर्स. ओके जी, फिर हमने देखा कि सिमेंटिक वाइज कि जब हम DFD को डिकम्पोज करते हैं तो हम इनकी नंबरिंग कैसे करते हैं. Then another thing that we discussed that when we decompose a certain process into multiple sub processes, तो decomposition से पहले उसकी जितनी, फॉर एग्जांपल हमने कहा कि जी ये हमारा लेवल 0 की DFD, हमने इसको अब फर्दर डिकम्पोज किया और हमने इसके 4 इस तरह के प्रोसेस बना दिए. तो अगर हम इसकी एक बाउंड्री खींचें तो इस वक्त इसमें से कितनी इनपुट्स आ रही हैं और कितनी आउटपुट जा रही हैं. देयर इज 1 इनपुट एंड देयर इज 1 आउटपुट, और अभी भी इस बाउंड्री के बाहर हम देखें तो देयर इज 1 इनपुट एंड देयर इज 1 आउटपुट. तो इट मीन्स के लेवल 0 एंड लेवल 1 DFD आर बैलेंस्ड, ठीक है. बैलेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट. इफ यू क्रिएट फॉर एग्जांपल यू हैव क्रिएटेड लेवल 1 DFD और लेवल 2 DFD, और आपने एक जिस प्रोसेस को भी डिकम्पोज किया था उसके गिर्द एक इमेजिनरी बाउंड्री खींचे एंड द नंबर ऑफ इनपुट आउटपुट दे आर नॉट द सेम, तो योर DFDs आर नॉट बैलेंस्ड एंड यू हैव मेड अ मिस्टेक.
सो दैट वाज व्हाट वी कवर इन DFTs. देन इन टर्म्स ऑफ क्लास डायग्राम्स, हमने क्लास डायग्राम्स के अंदर बेसिक्स तो पहले ही इस्टेब्लिश कर दिए थे कि यू हैव क्लासेस, और नॉर्मली एक क्लास के अंदर क्या होता है, यू हैव द क्लास नेम, देन यू हैव लिस्ट ऑफ एट्रीब्यूट्स, और फिर आपके पास होते हैं क्लासेस के ऑपरेशंस होते हैं. फिर हमने कहा था कि जी डिफरेंट क्लासेस दूसरी क्लास से जुड़ी होती हैं, जिनको हम कहते हैं, इनको हम कहते हैं एसोसिएशंस. फिर हमने कहा कि जी एसोसिएशंस की हम एनोटेट कर सकते हैं, वी कैन गिव द मल्टीप्लिसिटी इंफॉर्मेशन है, वो बताते हैं कि दो क्लासेस के दरमियान रिलेशनशिप क्या है. फिर हमने कहा कि एसोसिएशंस की डिफरेंट टाइप्स होती हैं. ठीक है, एसोसिएशन की टाइप्स के अंदर हमने डिस्कस किया, देयर इज अ टाइप जिसे हमने कहा जी होती है एग्रीगेशन. फिर हमने एक और टाइप जिसको हमने कहा कि वो होती है कॉम्पोजिशन, विच इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ एग्रीगेशन. फिर हमने कहा जी एक और टाइप होती है जो कि हमने कहा विच इज़ कॉल्ड डिपेंडेंसी. देन देयर इज अनदर थिंग विच इज़ कॉल्ड रियलाइजेशन. एंड देन वी डिस्कस्ड कि एक और तरह की एसोसिएशन होती है जिसे हम कहते हैं जनरलाइजेशन. एग्रीगेशन और कॉम्पोजिशन के अंदर हमने कहा था कि देयर इज अ होल पार्ट रिलेशनशिप, कि यू हैव अ होल क्लास एंड यू हैव अ पार्ट क्लास. एंड सिमिलरली इन टर्म्स ऑफ डिपेंडेंसी हमने कहा कि दो क्लासेस के दरमियान एक्सप्लिसिट एसोसिएशन नहीं होती, लेकिन देयर इज अ सिमेंटिक लिंक, और हमें लगता है कि यार एक क्लास को अगर हम चेंज करेंगे तो इट विल अफेक्ट द अदर क्लास एज वेल. फिर हमने कहा कि रियलाइजेशन के अंदर क्या होता है कि दिस इज काइंड ऑफ इम्प्लीमेंटेशन स्पेसिफिक, कि यू क्रिएट सर्टेन इंटरफेसेस. फॉर एग्जांपल इन जावा यू हैव एन इंटरफेस व्हिच इज कॉल्ड लिस्ट, तो उस लिस्ट को मल्टीपल रियलाइजेशंस हो सकती हैं. वन रियलाइजेशन कैन बी कि आपने लिंक लिस्ट बना लिया, अनदर रियलाइजेशन आपने स्टैक बना लिया, एक अदर रियलाइजेशन कि आपने उससे क्यू बना लिया. सो एंड व्हाई डू वी हैव दीज काइंड ऑफ इंटरफेसेस, क्योंकि दे इनकरेज रीयूजेबिलिटी और दे मेक दोज इंटरफेसेस दे आर वेरी जेनेरिक. फिर हमने कहा एक और तरह की एसोसिएशन कहते हैं जनरलाइजेशन. जनरलाइजेशन इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द इनहेरिटेंस रिलेशनशिप, कि यू हैव सुपर क्लास और फिर उससे आपकी जिसे हम जनरलाइज क्लास कहते हैं, और फिर आप उससे क्लासेस इनहेरिट कर लेते हैं जो कि स्पेसिफिक क्लासेस होती हैं, विच आर कॉल्ड सब क्लासेस. हमने कहा जी सब क्लासेस जो होती हैं वो सुपर क्लास की क्या क्या चीज़ें इनहेरिट करती हैं. दे इनहेरिट इट्स एट्रीब्यूट्स, दे इनहेरिट इट्स ऑपरेशंस, एंड दे आल्सो इनहेरिट all the relations that a superclass might have with other classes. ओके जी, फाइन. फॉलोइंग दैट हमने कहा जी CRC मॉडलिंग क्या होती है. CRC मॉडलिंग के अंदर हमने कहा कि हम इस तरह के कार्ड्स बनाते हैं, यहाँ पे हम क्लास का नाम लिख देते हैं और दो कॉलम्स में डिवाइड कर देते हैं. इसके अंदर हम सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लिख देते हैं, इसके अंदर हम सारे कोलैबोरेशंस लिख देते हैं. और फिर हमने कहा कि जी जितने भी आपके CRC कार्ड्स आपस में कोलैबोरेट कर रहे हैं तो वी नॉर्मली प्लेस देम टुगेदर. ठीक है, और वी क्रिएट दीज, देयर इज अ प्रॉपर वे ऑफ डूइंग इट. और उसके हमने कहा जी डिफरेंट स्टेप्स होते हैं. पहले हम एक टीम आइडेंटिफाई करते हैं, उस टीम के बाद हम एक अपने कमरा देखते हैं कि हमारा कमरा प्रॉपर उसके अंदर चीज़ें पड़ी हुई हैं जो कि CRC मॉडलिंग के लिए ज़रूरत होती है कि नहीं होती. फिर जो फैसिलिटेटर होता है वो बताता है कि CRC मॉडलिंग होती क्या है. फिर हम CRC मॉडलिंग के वो जो आइटरेटिव स्टेप्स हैं उनको फॉलो करते हैं, जिसके अंदर हम वी आइडेंटिफाई क्लासेस, वी आइडेंटिफाई ऑपरेशंस, वी आइडेंटिफाई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, वी आइडेंटिफाई कोलैबोरेशंस. फिर हम क्या करते हैं कि यूज़ केस के एक सिनेरियो को पकड़ते हैं और उसको अपनी CRC मॉडलिंग के ऊपर फिट करने की कोशिश करते हैं. एंड देन द फाइनल फेज इज जहाँ पर हम कहते हैं कि यूज़ केस बेस्ड सिनेरियो टेस्टिंग करते हैं टू एक्चुअली सी कि हमारी जो CRC मॉडल हमने बनाया दैट इज एक्चुअली फाइन और नॉट. ओके जी, इस स्टेज के ऊपर हमने कहा कि जी हमारा एनालिसिस फेज कंप्लीट हो गया. वी हैव आल्सो सीन कि इन UML हाउ डू वी क्रिएट दीज डायग्राम्स, और वी हैव आल्सो आंसर्ड लॉट ऑफ क्वेश्चंस कि एट व्हाट टाइम वी क्रिएट दीज डायग्राम्स and why do we create these diagrams and what is the purpose of creating these diagrams. Following that we basically started our discussion on design, and the most important thing that we discovered here is कि design is actually continuation of analysis. Analysis के अंदर हम जो चीज़ें कर रहे होते हैं they are actually an input to the design stage. ठीक है, और they are not sequential essentially. We can start design at the time when we are doing analysis. For example, जो हमने कहा कि जी आप जो यूज केस डायग्राम बनाते हैं दे आर यूज्ड व्हेन यू आर क्रिएटिंग यूजर इंटरफेस डायग्राम. सिमिलरली हमने कहा कि जो आप क्लास डायग्राम बनाते हैं दे आर यूज्ड व्हेन यू आर क्रिएटिंग आर्किटेक्चर डिज़ाइन. और इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइन हमने कहा कि चार तरह के डिज़ाइन आप करते हैं. यू क्रिएट आर्किटेक्चर डिज़ाइन, देन यू क्रिएट यूजर इंटरफेस डिज़ाइन, फिर हमने कहा आप बनाते हैं ऑब्जेक्ट और क्लास डिज़ाइन. फिर हमने कहा कि एक और तरह का डिज़ाइन होता है जिसे हम कहते हैं डाटा स्ट्रक्चर डिज़ाइन. तो ये चीज़ें हमारे डिज़ाइन के अंदर इन्वॉल्व होती हैं. और जिस तरह आर्किटेक्चर की मैंने आपको एग्जांपल दी कि आर्किटेक्चर के अंदर आपकी क्लास डायग्राम्स भी यूज़ होती हैं, आपकी शायद सिस्टम सीक्वेंस डायग्राम्स भी यूज़ होती हैं. यूज़र इंटरफेस के अंदर आपके यूज़ केसेस यूज़ होते हैं. ठीक है, ऑब्जेक्ट और क्लास डायग्राम के अंदर आपकी एक तो क्लास डायग्राम यूज़ होगी. ठीक है, आपकी कोलैबोरेशन डायग्राम शायद यूज़ होगी, आपकी स्टेट डायग्राम शायद यूज़ होगी. ठीक है, इसी तरह जब आप डाटा स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं तो उसके अंदर भी आपकी ऑब्जेक्ट डायग्राम और क्लास डायग्राम यूज होगी. सो एनालिसिस की चीज़ें आपके डिज़ाइन के अंदर दे आर यूज्ड.
ओके, इन टर्म्स ऑफ आर्किटेक्चर डिजाइन हमने कहा जी आर्किटेक्चर डिजाइन के 3 चीजें आप करते हैं। पहली चीज तो आप क्या करते हैं, यू स्ट्रक्चर योर सब सिस्टम्स, ठीक है, यू स्ट्रक्चर सब सिस्टम्स, देन यू एस्टैब्लिश अ कंट्रोल मॉडल। और कंट्रोल मॉडल क्या कहता है कि जो आपने सब सिस्टम्स आइडेंटिफाई किए हैं ये सब सिस्टम आपस में कैसे बातचीत करेंगे, ठीक। और तीसरी चीज हम करते हैं दैट इज सब सिस्टम डीकम्पोजिशन या मॉड्यूल डीकम्पोजिशन। सब सिस्टम डीकम्पोजिशन, आई थिंक इट्स कॉल्ड मॉड्यूलर डीकम्पोजिशन। एंड सो मॉड्यूलर डीकम्पोजिशन 3 स्टेप्स करते हैं। पहले में आप क्या करते हैं, बड़े बड़े सब सिस्टम बता दिए, फिर आपने कहा जी ये सब सिस्टम आपस में बातचीत कैसे करेंगे, यू एस्टैब्लिश अ कंट्रोल मॉडल। एंड द फाइनल थिंग दैट यू डू कि आपने कहा कि जी ये जो सब सिस्टम थे व्हाट आर द डिफरेंट मॉड्यूल्स दैट विल कंबाइन टू मेक दिस होल सब सिस्टम। ओके जी, मूविंग ऑन, देन वी डिस्कस्ड ऑब्जेक्ट एंड क्लास डिजाइन। इसके अंदर हमने पहले तो एस्टैब्लिश किया कि व्हाट डू वी मीन बाय ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इम्प्लीमेंटेशन। देन वी फॉर्मली है डिस्कस्ड कि हम क्लासेस कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, हमने कहा जी। और एक और चीज हमने यहाँ पे एस्टैब्लिश की कि क्लास के 2 तरह की रिप्रेजेंटेशन हो सकती है क्लास मॉडल की, देयर इज अ स्टैटिक रिप्रेजेंटेशन एंड देयर आर डायनामिक रिप्रेजेंटेशन। स्टैटिक रिप्रेजेंटेशन क्या हो सकती है कि यू हैव डिफरेंट बॉक्सेस व्हिच रिप्रेजेंट डिफरेंट क्लासेस, उनके दरमियान एसोसिएशंस है, ठीक है। सो अ क्लास डायग्राम इज अ स्टैटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट और क्लास डिजाइन। Then you have sequence diagrams, your behavioral diagrams, they are dynamic representation of classes. Okay ji. Then we saw how this is helpful in creating when we have to do object oriented implementation, how we basically this object or class design would be helpful in that. Following that our topic was user interface design. In terms of user interface design हमने कहा कि जी when a designer is creating user interface so he has basically 2 questions in mind. The first question is कि हमारा ये मेरा अगर सिस्टम है जो मैं बनाने जा रहा हूँ, तो अगर ये सिस्टम इनपुट्स लेगा तो हाउ विल द सिस्टम टेक और एक्सेप्ट इनपुट फ्रॉम यूजर। फिर हम कहते हैं कि यार ये कुछ आउटपुट भी प्रोड्यूस करेगा। तो दूसरा हमारा जो क्वेश्चन होता है यूजर इंटरफेस पॉइंट ऑफ व्यू से कि हाउ विल द सिस्टम represent information to the end user. और when you answer these 2 questions in terms of any product तो कहते हैं कि जी मैंने यूजर इंटरफेस डिजाइन बना लिया। क्योंकि यूजर इंटरफेस डिजाइन यही है कि एक बंदे ने आपकी जो प्रोडक्ट यूज करनी है वो इनपुट कैसे देगा और उस इनपुट को जब आप प्रोसेस करके एक आउटपुट प्रोड्यूस करेंगे तो आउटपुट कैसी होगी। सो व्हेन यू आंसर दीज 2 क्वेश्चंस तो हम कहते हैं कि यूजर इंटरफेस डिजाइन आपने बना लिया। फॉलोइंग दैट वी हैड सीरीज ऑफ लेक्चर्स ऑन सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। तो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के अंदर पहली चीज तो हमने एस्टैब्लिश की कि व्हाट डू वी मीन बाय टेस्टिंग और हम टेस्टिंग कब करते हैं, ठीक है, टेस्टिंग और टेस्टिंग कौन कौन करता है, ठीक है। पहली बात तो ये है कि जो कंपाइल टाइम एरर्स होते हैं या लिंक टाइम एरर्स होते हैं वो जो एरर्स आइडेंटिफाई करना है दैट इज द कंपाइलर्स जॉब। लिंकर की जॉब है वो आपको बताता है कि यार ये एरर आ गया एंड देयर दोस काइंड ऑफ एरर्स दे आर इजी टू फिक्स। वेयर एज टेस्टिंग का पर्पस क्या होता है कि यू ट्राई टू आइडेंटिफाई सिमेंटिक एरर्स, यू ट्राई टू आइडेंटिफाई द मिस्टेक्स जो कि आपने फॉर एग्जांपल एक कोड लिखा हुआ है तो यू ट्राई टू वेरीफाई कि यार ये रिक्वायरमेंट के हिसाब से मेरे प्रोग्राम को ये करना चाहिए था, अब ये नहीं कर रहा, तो यू हैव एन एक्सपेक्टेड आउटकम जो कि आपकी रिक्वायरमेंट्स की वजह से आपको पता लगे, देन यू हैव एन एक्चुअल आउटकम, तो यू ट्राई टू मैच देम एंड व्हेनेवर देयर इज अ डिफरेंस तो आप कहते हैं यार बग आ गया एंड दैट इज टेस्टिंग, ठीक है जी। ओके, और फिर हमने कहा कि जी टेस्टिंग कौन कौन लोग करते हैं, तो वी सेड देयर आर 3 काइंड ऑफ पीपल हु वुड डू टेस्टिंग। देयर आर सॉफ्टवेयर टेस्टर्स, देन यू हैव डेवलपर्स एंड देन यू हैव एंड यूजर्स। एंड फिर हमने कहा कि हमने ये भी डिफाइन किया कि किस किस लेवल के ऊपर ये लोग टेस्टिंग करते हैं। हमने कहा जी टेस्टिंग के 4 लेवल्स होते हैं, ठीक है, और ये लेवल रिप्रेजेंट करते हैं कि आप कितने यूनिट ऑफ कोड या कितने साइज की प्रोडक्ट को आप टेस्ट कर रहे हैं। एक सबसे जो माइक्रो स्केल ऑफ टेस्टिंग उसे हमने कहा जी यूनिट लेवल होता है। यूनिट लेवल के अंदर एक प्रोग्रामर ने जो कोड लिखा उसको टेस्ट कर दिया, तो ये तो हमें पता लग गया कि ये वाला काम जो है ये डेवलपर्स करते हैं, ये वाली टेस्टिंग। फिर हमने कहा जी इससे जो ऊपर वाला लेवल होता है that is called integration level integration testing which is done by developers / testers। फिर हमने कहा इससे जो ऊपर वाला लेवल होता है that is called system testing, और system testing हमने कहा this is job of testers, purely testers job। फिर हमने कहा जो आखिरी लेवल है acceptance testing that is done by end user। अच्छा, यूनिट का तो हमें पता लग गया कि उसके अंदर जो डेवलपर ने कोड लिखा उसको यूनिट टेस्ट कर लिया। इंटीग्रेशन टेस्टिंग क्या होती है? इंटीग्रेशन टेस्टिंग ये कहती है कि आपने अपने कोड को या अपने प्रोडक्ट को डिफरेंट मॉड्यूल्स में डिवाइड किया हुआ था, आपने एक मॉड्यूल बनाया उसको टेस्ट किया,
फिर दूसरा मॉड्यूल बनाया, उसको टेस्ट किया. नाउ व्हेन यू विल इंटीग्रेट देम टुगेदर, तो यू वांट टू नो कि वेदर व्हेन यू इंटीग्रेट देम whether the product function finds now or not. So at that level we do integration testing, and so that's why it is done by developers. अगर आप छोटे छोटे units को मिला रहे हैं, and if it is involving that you have you are combining basically multiple modules, so then it is done by testers. Then we have the system testing. जब आप अपने product के सारे modules को बना के उनको individually test कर लेते हैं, तो when you put all the modules together, तो आप कहते हैं यार हमने individually सब चीज़ें test कर लिए. Now is the time that we have to test our product against the requirements that we wrote. इस स्टेज के ऊपर जब टेस्टर्स आपकी प्रोडक्ट की टेस्टिंग करते हैं, तो इट इज कॉल्ड सिस्टम टेस्टिंग. एंड द फाइनल लेवल ऑफ टेस्टिंग इज एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, विच इज डन बाय द कस्टमर. कस्टमर आके प्रोडक्ट को एवेलुएट करता है, जो रिक्वायरमेंट्स उसने आपको दी होती हैं उनके साथ मैच करता है कि यार ये प्रोडक्ट को हमने इसको ये बनाने को कहा था, वेदर उसने ये बनाया कि नहीं बनाया. और इसीलिए हम इसको एक्सेप्टेंस टेस्टिंग करते हैं कि इफ दैट टेस्टिंग इज सक्सेसफुल, तो कस्टमर आपकी प्रोडक्ट को एक्सेप्ट कर लेता है. इफ इट्स नॉट, तो दे वुड से कि जी फिक्स दोस प्रॉब्लम्स. देन वी सेड दैट देयर आर डिफरेंट टेस्टिंग टाइप्स. ठीक है, और उसमें हमने कौन सी टाइप्स पढ़ी. हमने कहा जी एक जो टेस्टिंग की टाइप होती है दैट इज कॉल्ड व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग. देन वी हैव ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग. दीज आर द टू ब्रॉड टाइप्स ऑफ टेस्टिंग. व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग सेज कि यू वांट टू चेक द इंटरनल स्ट्रक्चर. या व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग के लिए यू नीड टू नो द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द कोड. और दैट इज वाई ये जो व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग होती है दैट इज डन बाय डेवलपर्स, क्योंकि डेवलपर्स को ही अपने कोड का पता होता है. ठीक है, तो जिसने लिखा है वही इसको टेस्ट करता है. इसीलिए जब हम व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग करते हैं तो इसके लिए आपको टेस्ट केसेस भी लिखने की जरूरत नहीं होती. ठीक है, और जो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग होती है, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग के अंदर यू डू टेस्टिंग ऑन द बेसिस ऑफ योर डाटा. ठीक है, आप अपनी प्रोडक्ट की फंक्शनैलिटी को चेक करते हैं. आप देखते हैं कि यार मेरी प्रोडक्ट की फंक्शनैलिटी कहती थी कि आउटपुट एक्सपेक्टेड आउटकम ए होनी चाहिए, तो आप अपनी एक्चुअल आउटपुट को देखते हैं यार ये A+1 तो नहीं आ रही. So if the actual output is also A, तो आप कहते हैं यार मेरा ये टेस्ट सक्सेसफुल हो गया. So this is what we do in black box testing. We are not interested and we do not want to know how the code is implemented. So we are only interested in the functionality. एक और टेस्टिंग टाइप होती है जिसको हमने कहा था that is called incremental testing. ठीक है, इंक्रीमेंटल टेस्टिंग का थोड़ा सा वेरिएशन भी है जिसे हमने कहा था इंक्रीमेंटल थ्रेड टेस्टिंग. तो इंक्रीमेंटल टेस्टिंग क्या कहती है कि आपने एक मॉड्यूल बनाना शुरू किया हुआ था, उसके अंदर आपने कुछ काम किया, फिर आपने थोड़ा सा उसके अंदर और काम किया, यानी कि आपने एक और फंक्शनैलिटी उसके अंदर ऐड कर दिया, एक फंक्शन के अंदर कुछ चीज़ें चेंज की. तो आप देखते हैं कि यार ये जो मैंने नई इंक्रीमेंट में काम किया है ये अब उसको चल रहा है उसके साथ कि नहीं चल रहा. फिर इसी की एक स्पेशल टाइप है इंक्रीमेंटल थ्रेड टेस्टिंग, जो कि ये कहती है कि आपने अगर दो डिफरेंट मॉड्यूल्स को जोड़ा है, ठीक है, तो आप उन दो मॉड्यूल्स में से एक लॉजिकल पाथ बनाते हैं. फॉर एग्जांपल देयर इज अ रिपोर्ट व्हिच नीड्स टू कम्युनिकेट विद एचआर, यू नीड टू कम्युनिकेट विद अकाउंट्स एज वेल. तो आपने क्या किया कि एक लॉजिकल पाथ क्या बना, वो जो रिपोर्ट ने एक लॉजिकल पाथ बनाया विच इज सेइंग कि आपको एचआर और इसके थ्रू जाना है. तो आप उस रिपोर्ट को रन करेंगे, देखेंगे अगर सक्सेसफुल है तो आप कहते हैं जी इंक्रीमेंटल थ्रेड टेस्टिंग इज सक्सेसफुल. देन वी सॉ देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग, जिसके अंदर देयर इज लूप टेस्टिंग, देयर इज स्टेटमेंट कवरेज, देयर इज स्टेटमेंट डिसीजन कवरेज. सिमिलरली ब्लैक बॉक्स की हमने बहुत सी टाइप्स देखी, लेकिन एक चीज जो हमने ब्लैक बॉक्स की टाइप पढ़ते हुए डिस्कस की थी कि इन ईच टाइप ऑफ ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग व्हाट वी आर एक्चुअली टेस्टिंग इज द फंक्शनैलिटी ऑफ द प्रोडक्ट. सिमिलरली इंक्रीमेंटल और थ्रेड टेस्टिंग की हमने डिस्कस किया कि व्हाट आर दे. Then another thing that we do which was very interesting, that we created a matrix between these type of testing and testing levels. हमने कहा जी जो white box testing होती है that is applied at unit level and integration level as well. फिर हमने कहा जो black box होती है that is done at system level and acceptance level. और जो incremental testing होती है that is done at integration level, which is kind of a combination of white box and black box. Then in terms of testing we said that whenever we have to do black box testing, so we write test cases. और in terms of writing test cases हमने identify किया कि यार पहली बात तो ये कि test cases हम लिखते क्यों हैं, कि you want to write test cases to increase your efficiency. ठीक है, और आप test cases हम इस फॉर्म में लिखते हैं कि एनी पर्सन, फॉर एग्जाम्पल यू हैव हायर्ड मल्टीपल इंटर्न्स या यू हैव फ्रेश ग्रेजुएट्स जो कि आपने नए नए हायर किए, दे नो हाउ टू ऑपरेट कंप्यूटर्स, तो टेस्ट केसेस आप उन्हें दे देते हैं और कहते हैं यार इस प्रोडक्ट को आप टेस्ट करो. सो टेस्ट केसेस शुड बी सो डिटेल्ड कि एनीबडी हु कैन यूज कंप्यूटर्स एंड ही कैन रीड, यू नो, ही कैन रीड दैट टेक्स्ट, ही कैन बेसिकली द इंस्ट्रक्शन शुड बी सो डिटेल्ड कि वो इंस्ट्रक्शन को पढ़ता जाए और आपकी प्रोडक्ट की फंक्शनैलिटी को चेक करता जाए. ठीक है, तो जब हम टेस्ट केसेस लिखते हैं तो वी सेड कि फॉर ईच रिक्वायरमेंट यू कैन हैव मल्टीपल टेस्ट केसेस. एक रिक्वायरमेंट के लिए तो हमने कहा कि जी फॉर ईच रिक्वायरमेंट बेसिकली हम एक टेस्ट केस लिखते हैं. ठीक है, फिर हमने एक और चीज़ डिस्कस की कि रिक्वायरमेंट और टेस्ट केसेस के दरमियान जो रिलेशनशिप होता है वो 1 to 1 का भी हो सकता है,
1 to n का भी हो सकता है, n to 1 का भी हो सकता है और n to n का भी हो सकता है। 1 to 1 का मतलब क्या है कि एक रिक्वायरमेंट के लिए आपने एक टेस्ट केस लिखा। 1 to n का क्या मतलब है कि एक रिक्वायरमेंट इतनी कॉम्प्लेक्स थी कि उसके अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ें हो रही थी, तो आपने मल्टीपल टेस्ट केसेस लिखने पड़ गए। फिर आपने क्या किया कि मल्टीपल रिक्वायरमेंट्स को एक टेस्ट केस भी कर सकता है। देन यू हैव अ कॉम्बिनेशन के जहाँ पे मल्टीपल रिक्वायरमेंट्स मल्टीपल टेस्ट केसेस के अंदर आप चेक कर रहे हैं और मल्टीपल टेस्ट केसेस शायद मल्टीपल रिक्वायरमेंट्स को देख रहे हैं। ओके, फिर हमने कहा कि जो टेस्ट केसेस लिखने की गाइडलाइंस होती हैं, और नॉर्मली टेस्ट केसेस लिखता कौन है? He would be somebody who has an understanding about the functionality of the product as well. You do not have your new staff या अपने juniors को आप नहीं कहते टेस्ट केसेस लिखो, क्योंकि that is a very important task. क्योंकि your test cases should be such, they should be designed in a way कि वो आपकी सारी requirements को टेस्ट करें, क्योंकि testing is a source जो कि आपको बताता है कि यार आपने प्रोडक्ट अब जो बना ली है वो सही है कि नहीं है। क्योंकि अगर आपके टेस्ट केसेस सही रहे, सक्सेसफुल रन हो गए, तो आपने कह दिया जी मेरी प्रोडक्ट ठीक है, वेयरएज आपके टेस्ट केसेस ऐसे थे जो कि प्रोडक्ट को सही तरह टेस्ट ही नहीं करते थे, तो टेस्टिंग वुड बी अ फेलियर। सो राइटिंग दीज टेस्ट केसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड देन राइटिंग इज वन थिंग, देयर इज अनदर थिंग जो हमने कहा था कि यू नीड टू वैलिडेट दोस टेस्ट केसेस। वैलिडेशन के अंदर आप क्या करते हैं? यू टॉक टू बेसिकली यू शो योर टेस्ट केसेस टू बिजनेस एनालिस्ट, टू यू टेल देम कि जी मेरा ख्याल में ये मैंने जो टेस्ट केस लिखे इस रिक्वायरमेंट के लिए, मेरे ख्याल में एक्सपेक्टेड आउटकम ये होनी चाहिए थी, डू यू थिंक इट्स राइट और रॉन्ग? तो यू बेसिकली वैलिडेट कि जो आपके टेस्ट केसेस हैं वेदर दे आर correct or not. Then we said कि we kind of differentiated between a good test case and a bad test case. हमने कहा कि there should be appropriate amount of detail in a test case. The reason is कि जो बंदा टेस्ट केस लिखता है हो सकता है वो बंदा वो टेस्टिंग ना करे, ठीक है? तो आपका टेस्ट केस ऐसा होना चाहिए कि जो बंदा पढ़े उसको वो कॉन्टेक्स्ट सारा पता लग जाए। फिर हमने आइडेंटिफाई किया कि जब हम टेस्ट केसेस लिखते हैं तो देयर आर मल्टीपल फील्ड्स दैट शुड बी इन अ टेस्ट केस। हमने कहा जी एक टेस्ट केस की यूनिक आईडी होनी चाहिए, टेस्ट डाटा होना चाहिए, एक्सपेक्टेड रिजल्ट का कॉलम होना चाहिए, एक्चुअल रिजल्ट का कॉलम होना चाहिए, टेस्ट स्टेप्स होने चाहिए, एंड देयर वाज एन एग्जॉस्टिव लिस्ट कि देयर आर द मल्टीपल थिंग्स दैट यू कैन इंक्लूड, बट दोस वर द बेसिक थिंग्स दैट शुड बी इन अ टेस्ट केस. Following that, we move to our topic on software quality assurance, जिसके अंदर we defined various quality concepts कि what do we mean by quality. हमने define किया कि यार जी quality जो होती है ना, ये software की when you make a product तो इसकी हर stage के अंदर quality होनी चाहिए. Requirement gathering में भी quality होनी चाहिए, design में भी quality होनी चाहिए, implementation भी. Only then we can say कि the product quality is good. So we said कि it's an umbrella activity, it's everywhere. Then we said कि quality in terms of quality can mean different things for different people. So we need to क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ क्वालिटी कि व्हाट डू वी मीन. सो हमें नंबर्स कैलकुलेट करने होते हैं. उसके लिए हमने कहा कि टेक्निक होती है, हम कहते हैं जी स्टैटिस्टिकल एसक्यूए वी डू. तो स्टैटिस्टिकल एसक्यूए अंदर वी कैलकुलेट डिफरेंट नंबर्स जिसके बेसिस के ऊपर वी कैन गेज कि वेदर वी आर इंप्रूविंग क्वालिटी और नॉट. और हमने देखा कि जी स्टैटिस्टिकल एसक्यूए के डिफरेंट टेक्निक्स हैं. उसके अंदर हमने कहा कि वन ऑफ द टेक्निक्स इज सिक्स सिग्मा. फिर हमने कहा कि जो हम डिफरेंट रिव्यूज कंडक्ट करते हैं वी कैन ऑल्सो गेज देम, उनके भी हम कुछ नंबर्स कैलकुलेट कर सकते हैं, उसकी एफिशिएंसी हम कैलकुलेट कर सकते हैं. देन वी डिस्कस्ड अ मेथड व्हिच इज कॉल्ड डिफेक्ट एम्प्लीफिकेशन एंड रिमूवल मेथड, जो कि आपके डिज़ाइन टाइम और कोड जनरेशन के जो रिव्यूज़ हैं उसकी उनकी एफिशिएंसी को कैलकुलेट करता है. देन वी डिस्कस्ड व्हाट वी मीन बाय सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी. उसके अंदर वी डिस्कस डिफरेंट मैट्रिक्स, जिसको हमने कहा जी हमने मीन टाइम बिटवीन फेलियर डिस्कस किया, वी डिस्कस मीन टाइम टू फेलियर, और इसी तरह वी डिस्कस्ड सॉफ्टवेयर अवेलेबिलिटी, व्हाट डू वी मीन बाय सॉफ्टवेयर अवेलेबिलिटी. So that was our discussion of software quality and statistical SQA. And in our last lecture on this course, we were closing in and we said कि जब आप अपने product के different diagrams बनाते हैं तो उसके different views होते हैं, ठीक. और उसके अंदर हमने behavioral view भी देख लिया, हमने class view भी देख लिया. फिर हमने कहा जी दो और views होते हैं. एक view को हम कहते हैं implementation view, एक view को हम कहते हैं environment view. Implementation view क्या बताता है कि आपकी product के कौन से component हैं और उन component को इम्प्लीमेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा कंपोनेंट दूसरे किस कंपोनेंट के ऊपर डिपेंडेंट है. वेयरएज अगर आपको याद हो तो हमने कहा था कि जी सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल की जो आखिरी स्टेज होती है दैट इज डिप्लॉयमेंट, ठीक है. तो डिप्लॉयमेंट के अंदर हमारा कंसर्न ये होता है कि हमने विजुअलाइज करना होता है कि यार ये प्रोडक्ट जब हमने डिप्लॉय करनी है कस्टमर साइट के ऊपर तो व्हाट विल बी द नोड्स फिजिकली, कौन से हार्डवेयर के ऊपर मेरा कौन सा कंपोनेंट चलेगा, दैट इज डिप्लॉयमेंट, ठीक है. और उसके अंदर हम क्या करते हैं, रन टाइम के ऊपर जितने भी कंपोनेंट्स यूज होंगे, ठीक है, वो सारे हम उन डिफरेंट नोड्स के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं. एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी क्रिएट अ डिप्लॉयमेंट डायग्राम. So today's lecture was a very quick review or overview of this course on software engineering 1, and we have kind of discussed what we have covered in this course. Again, this was introductory course on software engineering, where we said
कि वी डिफाइन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, फिर हमने कहा जी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर एनालिसिस होता है, डिज़ाइन होता है, हमने कहा कि हर एक काम को करने का कोई तरीका है, और उस तरीके की बेसिस के ऊपर हमने डिफरेंट तरह के मॉडल्स डिस्कस किए हैं, हमने टेस्टिंग के तरीके डिस्कस किए, हमने कहा जी प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या होती है, एंड फ्यू थिंग्स विच वी हैव नॉट डिस्कस, फॉर एग्जांपल इम्प्लीमेंटेशन को हमने यहाँ पे डिस्कस नहीं किया, क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन वुड बी टेकन केयर ऑफ इन योर other courses. So this is it from software engineering 1, or I think we have covered the course that we decided at the beginning, and if you guys have any questions, then my email address is naveedahmed@comsets.edu.pk, so you can write me emails and you can ask me any questions about any of the content that we have covered, and best of luck in regards to this course and in regards to your degree, and thank you very much. Assalamu alaikum.